Hello everyone, welcome back to lecture 3 and I hope all of you are doing good and you are keeping your interest in this course on sequence and series very well and you have already watched lecture 1 and lecture 2. Okay, so before starting with our lecture 3 where we have to do a lot of examples on boundedness of a sequence and where we have to see there are a number of ways to see and to prove how a sequence becomes bounded. So let's look at the summary of lecture 2, that what we saw in our lecture 2, and that was quite important with respect to the theoretical concepts. So the summary of lecture 2 is that first of all we covered a theorem of boundedness, and the theorem was that a sequence an is bounded if and only if there exists a real number m for which mod an is less than or equals to m for all n belonging to natural number, right? We have done this theorem, like when we started our class with this theorem only. Okay, so I hope there is no problem till this point to anyone, and I have also given you the proof of this theorem, so that like even if you do not know or you have never wrote proof of any theorem, it became very easy for you and you got to know that how we proceed with the uh, proof of the theorems or any statement that is given to us. Okay, so the theorem was a sequence an is bounded if and only if there exists a positive real number m for which an is less than or equals to m for all n belonging to natural number. Then we saw the least upper bound of a sequence, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस ऑलरेडी सीख लिया था, तो हमने लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस पे बात करी, उसको समझा एंड देन उस पे हमने कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो नोट करे. ठीक है, देन द सेम थिंग फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस. A lower bound already we saw in our lecture 1. In lecture 2 we saw the greatest lower bound along with its very important two properties that can help us in section A and section B with theoretical questions जो problem create करते हैं. ठीक है, तो आज का क्लास का मेन टॉपिक जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और देखना है कि कितने तरीके होते हैं जिनसे हम किसी सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, so let's proceed with the few like easy to hard questions. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है an जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट? वी हैव आल्सो like read it in our I think lecture 1. This is a constant sequence. Why this is a constant sequence? Because every element of the sequence is 3. So how this sequence look like? This look like uh, 3 3 and 3, like every element is mapped to 3. तो इसका जो nth term है हमारे पास 3 है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट जो है an उसको आप 3 से बाउंड कर सकते हो, है ना. सी, तो this sequence is bounded above also by 3 and bounded below also by 3. तो ये सीक्वेंस an जो है वो हमारे पास कैसी हो गई? दिस बिकेम द बाउंडेड सीक्वेंस. तो मैं आपको इस क्वेश्चन से, सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन से ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कभी कभी हम सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए सीक्वेंस के एलिमेंट्स का ट्रेंड देख के भी पता कर सकते हैं. यहाँ देखो, सीक्वेंस का ट्रेंड क्या है? हर एक एलिमेंट 3 है, तो ऑब्वियसली इट इज बाउंडेड बाई 3, या किसी और बड़े एलिमेंट से बाउंड करा देते, है ना. तो 4 5 3.5 एनी एलिमेंट, तो अगर आप देखोगे तो इसका लीस्ट अपर बाउंड 3 होगा, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी 3 होगा. सो सिंस दिस इज बाउंडेड अबव ऑल्सो, है ना, दिस इज बाउंडेड अबव ऑल्सो एंड दिस इज बाउंडेड बिलो ऑल्सो, सो दैट इज वाई दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड. या तो फिर दूसरा तरीका आप क्या फॉलो कर सकते हो, मैंने आपको रेंज भी पढ़ाई थी, है ना. तो रेंज ऑफ अगर सीक्वेंस an निकालोगे दैट इज अ सिंगलटन सेट 3. एंड सिंगलटन सेट, कोई सेट को बाउंडेड हम वैसे ही दिखाते हैं जैसे सीक्वेंस के लिए हमने पढ़ा है ना, फंक्शन के लिए जैसे हमने पढ़ा है, तो ऑब्वियसली द सेट इज बाउंडेड, दिस सेट इज बाउंडेड. तो रेंज बाउंडेड हो गई तो इट इम्प्लाइज व्हाट कि सीक्वेंस an इज बाउंडेड. ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट वे टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ रेंज वेदर द सीक्वेंस इज बाउंडेड और अनबाउंडेड. ठीक,
कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि सपोज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस -1 raised to the power n into 5। ठीक है, तो -1 raised to the power n into 5 अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो। ये सीक्वेंस अगर आपने 1 दिया तो -5 है ना, फिर 5, देन -5, देन 5, देन -5 है ना। मतलब जो ऑड इंडेक्सिंग है ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि an जो है हमारे पास वो -5 होगा जब मेरे पास n जो है वो ऑड है, यानी ऑड नंबर्स आर बीइंग मैप्ड टू -5 एंड द इवन नंबर्स आर बीइंग मैप्ड टू व्हाट, आर बीइंग मैप्ड टू +5। तो यहाँ देखो सीक्वेंस के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, वो ऑब्वियसली -5 और 5 आ रहे हैं। ये एक फाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट बाउंडेड है, तो मतलब कि जो हमारे पास रेंज है वो कैसी है, रेंज इज बाउंडेड। तो इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज कि जो सीक्वेंस an है वो भी हमारे पास बाउंडेड है ना। रेंज से नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। कैसे, हाउ कैन यू सी इट डायरेक्टली, लेट्स सी इट हियर कि हमारे पास जो यस लेट्स सी इट हियर, हमारे पास जो सीक्वेंस का एलिमेंट है अगर आप देखो वो -5 से 5 के बीच में ही है। जैसे हमने -1 और 1 वाला सीक्वेंस देखा था ना, सिमिलरली आप इसको देखो तो हर एक नंबर जो है वो हमारे पास एक नंबर ऐसा है जिससे बड़ा और या छोटा है, या और एक नंबर ऐसा है जिससे छोटा या बराबर है ना। तो यहां से सीक्वेंस कैसी हो गई, यहाँ से सीक्वल बाउंडेड बिलो हो गई। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से जो सीक्वेंस है वो हमारी बाउंडेड अबव हो गई। और अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो हो जाए तो जो सीक्वेंस है वो अपनी पास कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताती हूँ, सेट ऑफ अपर बाउंड निकालने जाओगे है ना, तो जो हमारे पास 5 और 5 से बड़े जितने नंबर होंगे वो सब ऐसा काम करेंगे एज अ अपर बाउंड। और अगर आप सेट ऑफ लोअर बाउंड निकालने जाओगे तो -5 और उससे छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो -∞ टू -5 ये हो जाएगा। तो जो 5 है क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड होता है तो अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, तो 5 लीस्ट अपर बाउंड बनेगा एंड लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -5 बन जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए किसके बिहाफ पे, पहली अप्रोच हमने जो सीखी दैट इज अप्रोच 1, और वो अप्रोच क्या थी हमारे पास कि या तो हम रेंज निकाल लें सीक्वेंस का, उसको देख लें, या फिर हम सीक्वेंशियल एलिमेंट्स, एक्चुअली ये दोनों अप्रोच सेम ही है इन दिस केस, बट कभी कभी हम देखेंगे इन दोनों में फर्क। तो या तो आप सीक्वेंशियल एलिमेंट्स की बाउंडेडनेस को देख लो उनकी हेल्प से। ठीक है, दिस वाज आवर अप्रोच 1 फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर ऑफ 2। So I think question number 1 and question number 2 were quite easy for all of you. ठीक है, so let's proceed for the next questions. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या नई अप्रोच हमको मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स टेक an, ओके, an as यानी कि जो nth टर्म है हमारे पास वो हम क्या लेते हैं 2n+3 बाय 3n+4। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करना होता है कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ यहाँ पे, आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है आपका वो सेम डिग्री में प्रेजेंट है, एंड सेम डिग्री के साथ साथ अगर आप देखोगे तो डिग्री जो है वो 1 ही है। ये एक पॉलिनोमियल की तरह देख सकते हो अगर आप थोड़ा सा फंक्शन में एज्यूम करो f(x = 2x+3) या f(x = 3x+4), तो इट्स काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डिग्री 1 के हैं, या जब भी आपको सेम डिग्री का मिले, नॉट ओनली सेम डिग्री, मतलब नॉट ओनली डिग्री 1, सेम डिग्री, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है, तो आप ये अप्रोच लगा सकते हो कि आप अपने जो न्यूमरेटर को है उसको मैनेज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो कैसे करेंगे हम एडजस्टमेंट? देखो यहाँ पे nth टर्म को ही लेके हमें बाउंडेडनेस प्रूफ करनी है। तो nth टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है 2n प्लस 3 बाय 3n प्लस 4, ठीक है। एंड ये फॉर ऑल n के लिए यही है। तो एडजस्टमेंट करो जरा, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इन दी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू इट इन न्यूमरेटर। तो an को हम क्या लिखेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा 3n प्लस 4 है। जैसे यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3n प्लस 4, तो हमें न्यूमरेटर में भी 3n प्लस 4 बनाना है। तो देखो ये तो हमारे पास 2n है, तो हमने 3n बनाया और यहाँ पे हमने 3 कर दिया, सेम रहेगा। अब प्लस 4 कर दो, यहाँ माइनस 4 कर दो, और प्लस 3 ऑलरेडी है। आई होप समझ आ गया, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, एक टर्म बनाना चाहते हैं। तो 2n को 3n बनाने का तरीका यही है, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 3n बन जाएगा, और प्लस 4 माइनस 4 कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा न्यूमरेटर में, और हमको जैसा चाहिए था डिनोमिनेटर जैसा, वैसा बन गया। तो अब देखो ये an कैसा बनेगा, 2/3, और आप 3n प्लस 4 को एक साथ रख लो, और माइनस 2/3 इंटू 4, क्योंकि ये वाले टर्म को हमने अलग कर दिया, एंड दिस इज प्लस 3, ठीक। तो ये क्या बन गया, 3n प्लस 4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बन रहा है, 2/3, अब सेपरेट करोगे तो यहाँ पे 3n प्लस 4, देन दिस इज 3n प्लस 4। See, I am going very slow and I am explaining each and every step so that the students who have like zero knowledge about how to see the boundedness, I am trying to do it very slowly. Okay, so even if you have any question, still you can ask me. ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, अब ये वाले टर्म का क्या हुआ देखो, तो दिस इज -8/3, ठीक है, प्लस 3। सो दिस इज सिंपली, अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा बन जाएगा 3 एंड माइनस का 8/3, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3n प्लस 4, ठीक है, ऐसा बन गया। अब हम आगे देखो यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो an की जो वैल्यू है वो क्या बनी, 2/3, क्योंकि जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा न्यूमरेटर को, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2/3। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 8 यानी कि 1/3 का 3n प्लस 4। आई होप इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, प्लीज आस्क मी। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या कि जो मेरे पास 1/3n प्लस 4 है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 1/3n प्लस 4। तो ये वैल्यू जो है, क्योंकि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू अगर आप चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी कि नहीं आएगी, 1/3n प्लस 4। No matter what value of n as a natural number you keep in this term, this going to be always less than 1, correct? ऐसा हमको समझ आ गया कि ये वैल्यू जो है ये हमेशा ऐसा फॉलो करेगी, ठीक है। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हमने जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, राइट, हमने जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है उसमें हम यूज करते हैं, तो ये an जो होगा वो क्या बनेगा, okay, this an is going to be less than 2/3 plus 1/3 into 1, क्योंकि मैंने इस 1/3n प्लस 4 को लेस देन 1 दिखा दिया। तो अब ये वैल्यू बन के क्या निकला हमारे पास, सिंपली दैट an is less than 1, and this is happening for all n, so this is also happening for all n। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि जो an है वो लेस देन 1। लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या समझ आया, हमने सिर्फ इतना ही प्रूफ किया है कि an is less than 1। तो इस एक्सप्रेशन से हम ये प्रूफ कर पाए हैं कि सीक्वेंस an जो है वो मेरे पास बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। बट अभी हम बाउंडेड नहीं प्रूफ कर पाए, क्यों, क्योंकि बाउंडेड प्रूफ करने के लिए वो बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए। और सीक्वेंस क्या दी थी हमारे पास, सीक्वेंस दी हुई थी 2n प्लस 3
बाय 3n+4, जहाँ पे हमने an के लिए ऐसा दिखा दिया, और एक मिनट, यहाँ पे हमको फॉर ऑल n लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा, फॉर ऑल n, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। लेकिन अब अगर देखो n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो अगर सीक्वेंस के टर्म्स देखोगे आप, अगर आप 1 रख रहे हो n की वैल्यू, तो क्या बनेगा 5/7, ठीक है। अगर 2 रखोगे तो दिस इज 7 एंड दिस इज 10, लाइक दिस, क्योंकि भाई 1 रखा तो 2 + 3 5 आया, एंड 3 + 4 7, जब 2 रखा तो 4 + 3 7 एंड 6 + 4 10। तो कैन यू सी कि एवरी नंबर या एवरी सीक्वेंशियल टर्म इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। यहाँ से भी दिख रहा था, बिना लिखे टर्म्स को भी हम पता लगा सकते थे, क्योंकि भाई n नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव है, ऊपर सब में पॉजिटिव टर्म, since n is positive so 2n+3 is positive, since n is positive 3n+4 is positive, so positive by positive is what? Positive. Okay, so we can say that 0, like every number, every sequential term is greater than 0. तो अब आप देखो जरा ध्यान से कि ये जो मैंने 1 लिखा है और ये जो मैंने 2 लिखा है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 कैन आई से दैट जो मेरे पास सीक्वेंस है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर। और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेरे पास सीक्वेंस an है दैट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट ये जो हमारी एक अप्रोच है जिसमें हम न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करते हैं एंड वी ट्राई टू मेक इट और सिमिलर टू डिनोमिनेटर, इसमें हमने कैसे बाउंडेडनेस को दिखाया है। यस, इफ देयर इज एनी डाउट देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज like you can ask me anytime even if you have any problem. Okay, इसी के जैसा देखो एक और सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है, जस्ट सिमिलर टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको एक सीक्वेंस an दी है और इसमें ये ऐसा दिया हुआ है n/n+1, ठीक है। सो nth टर्म क्या होगा हमारे पास सीक्वेंस का, देखो ये सीक्वेंस है क्योंकि ये हमने नोटेशन पढ़ा था ना, और ये an लिखने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ये सीक्वेंस है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सीक्वेंस कैसी दिखेगी 1/2, ओके 1/2, 1 वैल्यू रखी, देन 2/3, देन 3/4, 4/5, 5/6, लाइक दिस, है ना। तो आप देखो सीक्वेंस का पहला टर्म जो है a1 वो क्या नजर आ रहा है हमको, ये भी सीख लो, a1 जो है वो 1/2 है, सीक्वेंस का दूसरा टर्म a2 जो है वो 2/3 है, सीक्वेंस का तीसरा टर्म वो 3/4 है, एंड सो ऑन। उसी तरह हमारे पास nth टर्म जो होगा सीक्वेंस का, ठीक है, जिसको मैं यहाँ लिखती हूँ आपके लिए, वो होगा n/n+1 एंड लाइक दिस। तो an क्या होगा हमारे पास n/n+1। ऐसे ही अगर मैं an+1 निकालूंगी तो n की जगह n+1 रखो, n प्लस और फिर n+1+1 n+2 बनेगा एंड सो ऑन, क्योंकि सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं, हमने पहले लेक्चर में देखा, तो ये समझना जरूरी। तो हम nth टर्म की हेल्प से सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको जो एक छोटी सी ट्रिक दी थी देखने के लिए कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल नजर आते हैं सेम डिग्री के, तो आप ये लगा सकते हो ना। तो nth टर्म अगर हम देखें तो वो n/n+1 है, क्या हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यस, n+1 -1, ओके, गिव मी अ मोमेंट, यस। तो n था, +1 -1 किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब उसे सेपरेट करो आप, तो दिस इज n+1/n+1 -1/n+1, तो क्या मिल रहा है हमें 1 - 1/n+1। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। जो आपका 1/n+1 है, ठीक है, यानी 1 - 1/n+1, जो आपका 1/n+1 टर्म है वो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा 1 से कि नहीं होगा, ये बताओ। यानी 1/n+1 जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 ही होगा फॉर ऑल n, राइट। ऐसा क्यों
भाई एन की वैल्यू चेंज करोगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा क्योंकि एन पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर जो ओवरऑल वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा जो ओवर वैल्यू है वो उतनी छोटी होती जाएगी। तो जब एन की वैल्यू 1 थी तो दिस इज 1/2 0.5, देन एन की वैल्यू 2 हुई तो 1/3 0.3। तो एज यू सी लाइक जितना जैसे हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है, और वो हमेशा 1 से कम आएगी। अब अगर ऐसा है तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 - 1/n+1 भी तो क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता वो, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आई होप इट इज क्लियर कि अब अगर ऐसा हो रहा है हमारे पास तो हम क्या कह सकते हैं कि जो an वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 ही आने वाली है। यस, क्योंकि जब ये वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 में कुछ कम करोगे तो 1 से कम ही तो आ जाएगी। यस और नो? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और देखो यहाँ से हम एक और जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट स्लाइड। तो an हमारे पास हम कहाँ तक पहुंच गए, 1 - 1/n+1, और n अब ऐसे समझ सकते हो, दूसरा तरीका क्या है कि जो 1/n+1 वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और 1 से छोटी है, तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? तो जो an है मेरे पास वो ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, ठीक है? तो an जो है 1 - 1/n+1 ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो सीक्वेंस जो है यहाँ से हमने क्या दिखा दी, बाउंडेड अबव दिखा दी, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से हमेशा छोड़, 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, x, तो वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा। अभी हमने देखो ये चीज k - एप्सिलॉन लेस देन k सीख कर आए थे जब हम अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सब प्रूफ वगैरह देख रहे थे, है ना? तो ये बाउंडेड अबव हो गई, और एज यूजुअल यू नो दैट an इज इक्वल टू n/n+1 है, तो ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि n पॉजिटिव है, तो बाउंडेड बिलो भी हो गई ना हमारे पास ये। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो 0 से 1 के बीच में है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो इन शॉर्ट जो सीक्वेंस an है हमारे पास वो कैसी हो गई, वो एक बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। अब देखो मैं आपको इसी को एक दूसरे तरीके से प्रूव करना सिखाती हूँ। ये हमारी अप्रोच नंबर 2 थी, ठीक है, दैट वाज आवर अप्रोच नंबर 2, जहां पे हम क्या कर रहे थे, एडजस्टमेंट कर रहे थे। कहाँ पे? एडजस्टमेंट इन दी न्यूमरेटर। एक ही क्वेश्चन को बाउंडेड दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बट यू जस्ट हैव टू सी कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो एडजस्टमेंट इन दी numerator, and we try to make it similar to denominator. This was our approach number 2 for question number, and कौन सा question number था हमारे पास, 4 and 3, right? Yes, so this was our question number 3 and 4, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, ठीक है, लेट्स सी इट। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा था, an की वैल्यू क्या थी, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन, 2n + 3 by 3n + 4, ओके, 2n + 3 by 3n + 4। इसको ऑब्जर्व करने की क्या तरीका है, जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द वे टू ऑब्जर्व इट। सो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, आपने ऑब्जर्व किया वही सेम चीज जो आपने वहां ऑब्जर्व करी थी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल टाइप है सेम डिग्री के, ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब दोनों टर्म सिमिलर दिख रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज an को आप ले लो 2n + 3 by 3n + 4, और आप देखो आप 1 सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो रिलेशन को, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही एक तरीका फॉलो कर सकते हो। देखो अगर मैंने 1 माइनस ए एन किया तो क्या आएगा, 1 माइनस 2n+3 बाय 3n+4। ठीक है, तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 3n+4 माइनस का 2n माइनस का 3 बाय 3n+4 एंड दिस इज 1 माइनस ए एन। तो 1 माइनस ए एन की वैल्यू क्या आ गई, देखो 3n माइनस 2n इज n एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर सिंपली +1 बाय 3n+4, है ना। अब इस वैल्यू को आप देखो, जो आपका n+1 है और जो 3n+4 है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो 1 माइनस ए एन है, क्योंकि राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो क्या पता लगेगा आपको कि 1 इज व्हाट, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन। तो यहाँ से क्या पता लगा, n लेस देन 1 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से भी हमने क्या दिखा दिया, सीक्वेंस को बाउंडेड अबव, और वो तो हमको दिख ही रहा है ना, कि ए एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है। तो कभी कभी हम 1 माइनस ए एन या ए एन माइनस 1 करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ए एन माइनस 1 करते तो क्या मिलता, 2n+3 बाय 3n+4 एंड -1। तो दिस इज गोइंग टू बी 2n माइनस 3 एन माइनस एन एंड 3 माइनस 4 -1 बाय 3n+4। ठीक, तो आप ये माइनस साइन इधर एडजस्ट कर लेते तो वापस से आप इसी टर्म पे पहुंचते कि नहीं, कि 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू, और फिर आप सेम इन इक्वालिटी को लगा लेते। तो आप +1 -1 भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? So with the help of these question, I'm just trying to give you different approaches to see how you can like prove or how you can look at the sequence boundedness. ठीक है, now coming to question number 4, है ना, उसमें ए एन हमने क्या सीखा था, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन, n/n+1। ठीक है, दैट वाज n/n+1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +1 और -1 करने से कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर आप देखो 1 माइनस ए एन चलो कर भी लेते हो तो 1 माइनस n/n+1 आएगा, तो वो n+1 माइनस n/n+1। तो यहाँ पे देखो ये भी एक अप्रोच लग सकती है। तो 1 माइनस ए एन आया हमारे पास, और 1 माइनस ए एन अब हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो दिस इज 1/n+1, और 1/n+1 को आप क्या कह सकते हो कि ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, yes, this value is always going to be greater than 0 since 1/n+1 is always greater than 0 for all n belonging to natural number। तो जो 1 माइनस ए एन हुआ वो भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो 1 ग्रेटर देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो जो ए एन है वो लेस देन 1 हो गया फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, बाउंडेड अबव दिखा दिया। ठीक है, और इस वाले टर्म से हम सिंस n इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो a n इज इक्वल टू n/n+1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो बस यहां से हमने क्या दिखा दिया, यहां से हमने बाउंडेड बिलो दिखा दिया। तो जो सीक्वेंस है वो 0 से 1 के बीच में हो गई फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो यहां से हमने दिखा दिया कि सीक्वेंस a n इज बाउंडेड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब देखो ये हमने तरीके सीखे +1 -1 करके देखने के। एक और तरीका है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट हम सीक्वेंस की हेल्प के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जा सकते हैं, देखो जरा, यहीं पे हमने ए एन जो था वो n/n+1 देखा, ये सीक्वेंस देखी, तो हमें क्या पता है कि सीक्वेंस में जो n/n+1 टर्म है वो क्या है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू, ओके, दिस इज ए एन इज इक्वल्स टू n/n+1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। तो यहां से हमने दिखा दिया कि हाँ भाई वो बाउंडेड बिलो है। अब नाउ यू सी देयर इज वन मोर वे टू फॉर अस कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स को, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को देख के हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ देखो
क्या मैं कह सकती हूँ कि जो n+1 है वो हमेशा n से बड़ा होगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर? हाँ होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो n+1 हमेशा n से बड़ा होगा। तो अब देखो, अगर मैं n/n+1 निकालूं तो क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज ऑलवेज व्हाट, n/n+1 का नेचर अगर मैं इवेल्युएट करूं तो क्या निकलेगा, n/n+1 इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और n/n+1 है क्या, नथिंग बट an, तो an इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 1 फॉर ऑल नेचुरल बिलोंग, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड अबव, है ना, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड बिलो, हेंस द सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना। तो इट्स नॉट ऑलवेज ओनली वन केस कि आप +1 -1 कर लो, है ना, या फिर आप सीक्वेंस के एलिमेंट्स के साथ ही कुछ खेल लो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस स्टेप तक जाऊं, ओके, लेट मी जस्ट, तो हमने अप्रोच नंबर 3 क्या देखी अपने पास, approach number 2 was adjustment in the numerator for question number 3 and 4. then यहाँ पे हमने क्या देखा कि an-1 कर लो या फिर 1 - an कर लो, है ना, इससे हमें एक अप्रोच मिल जाती है जो कि हमने किया भी, यहाँ 1 - an किया हमने, यहाँ 1 - an किया हमने, सो टू सी द बाउंडेडनेस। और आपको ये चीज याद रखनी है कि ये हम कब देख रहे हैं, व्हेन आर न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर लुक्स लाइक पॉलिनोमियल एंड दे आर इन द सेम डिग्री, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब अप्रोच नंबर 4 एक्चुअली यही थी कि हम सीक्वेंस के टर्म्स को का नेचर ऑब्जर्व करें, ठीक है। ये दिस वाज आवर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, यस, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो ये लिया हमने n/n+1, और ये हमने सीक्वेंस के एलिमेंट्स का नेचर, यानी जो nth टर्म है उसी में हमने देख लिया क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आपको an दिया हुआ है क्या, सपोज n/n² + 1, ठीक है। इन सब केसेस के लिए जो हमने अप्रोच 1 और अप्रोच 2 देखी है, उस सब केसेस के लिए आपको जो डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वो सेम चाहिए, है ना। अब अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस के एलिमेंट्स में जो, यानी जो nth टर्म दिया है उसमें अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर समथिंग दिया है तो आप उसमें देखो कैसे, जैसे हमने अभी ये वाला केस डिस्कस किया ना, n और n+1 में हमने रिलेशन देख लिया, वैसे ही हम यहाँ देख सकते हैं। कैसे, देखो जो मेरे पास n² + 1 है ना, ये ऑलवेज कैसा होगा, ये ग्रेटर देन होगा n² से, राइट। तो इसको हम इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं, कैसे, कि जो मेरे पास n होगा वो हमेशा छोटा होगा n² से, है ना, क्योंकि, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, अगर ऐसे ही कोई रियल नंबर होता तो वी कैन नॉट राइट दिस, बट सिंस n इज अ नेचुरल नंबर सो वी कैन राइट दैट n इज लेस देन n², एंड n² वुड ऑलवेज बी लेस देन व्हाट, n² + 1, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में हमको रिलेशन मिल चुका है, हमें ये वाला उठाना है n और ये उठाना है n² + 1, तो n अगर लेस देन n² + 1 है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सो ऑब्वियसली n/n² + 1 वुड बी लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सो n/n² + 1 is nothing but the nth term of the sequence, तो an is less than 1 for all n belonging to natural number, ठीक है। सो यहां से हमने क्या दिखा दिया, अगेन बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। और सीक्वेंस का टर्म जो है, सिंस व्हाट्स हैपनिंग, सिंस n/n² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, तो जो हमारे पास an है वो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो यहां से हमने उसको दिखा दिया बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। तो इन दोनों को कंबाइन करके सीक्वेंस कैसा बन गया, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो अप्रोच 3 हमने ये सीखी थी, एंड अप्रोच 4 क्या आई हमारे पास, अप्रोच 4 ये आई कि ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशन, ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशन इन द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, या और स्पेसिफिकली बात करूं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सीक्वेंस। एंड
हर जगह वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट दैट हम देख रहे हैं क्या क्या अप्रोच हो सकती है। ये अप्रोच हो सकता है किसी दूसरी सीक्वेंस में ना लगे, बट हो सकता है कहीं पे लग भी जाए। ठीक है, सो वी हैव सीन टिल नाउ 4 अप्रोचेस टू सी whether the sequence is bounded or not. ठीक है, now let's take one more example which is quite important for our today's class, and वो आज की क्लास का सबसे important question है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम ले चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक सीक्वेंस ए एन दी हुई है, एंड दैट इज व्हाट 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन। ठीक है, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो दी हुई है, एंड वी हैव टू see about this sequence whether this is bounded or unbounded, and this is the most important question of today's class. Okay, जिसको आप कह सकते हो दैट दिस इज द हीरो ऑफ दिस क्लास। अगर आपको ये समझ आया तो आपको आज बहुत सारी अप्रोचेस मिलेंगी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखो इस सीक्वेंस को देखें अगर, तो एक चीज तो क्लियर है इस सीक्वेंस को लेके कि इसका हर एक नंबर जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, पर और भी तो देखते हैं, अगर कुछ हमको लोअर बाउंड मिल पाया ठीक उससे बड़ा, तो फिर हम एलयू भी सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी की तरफ भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आप देखो इसका nth टर्म क्या दिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना nth टर्म से ही हमको बाउंडेडनेस जो है वो प्रूव करनी। nth टर्म क्या दिया है 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, ऐसा दिया हुआ है nth टर्म। ठीक है, सो क्या करना है अपने को, अगर ध्यान से देखो इट डोंट यू थिंक सो इट लुक्स लाइक द बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने सिंपल सा, अगर आप मैं अगर बहुत इसकी बात करूं 1 प्लस एक्स की पावर एन, सो दिस इज 1 प्लस एन एक्स, आप एन सी वन भी लिख सकते हो वट एवर यू फील लाइक, है ना, प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। और अगर मैं nth टर्म की इसमें और बात करूं तो वो क्या होगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे देखो अगर 2 फैक्टोरियल था तो केवल ये n माइनस 1 तक ही जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली दिस इज n फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक कम तक जाना है हमको, तो n माइनस एन माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं इस जो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो दिस इज व्हाट वी से बाइनोमियल एक्सपेंशन। और अब एक नई अप्रोच आपके सामने देखो आ रही है, विच इज आर अप्रोच नंबर, एंड व्हाट इज द अप्रोच नंबर, इट इज 5th। ठीक है, कि हमको कभी कभी एक्सपेंशन भी यूज करना पड़ सकता है फॉर सीइंग वेदर द सीक्वेंस इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। और ये अच्छा हुआ कि लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल शुरू नहीं किए, क्योंकि एक ही क्लास में हम ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब कुछ नहीं समझ आ रहा है कैसे करें और पावर में नजर आ रहा है कुछ, तो हम एक काम करते हैं हम एक्सपेंशन ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ए एन का एक्सपेंशन अगर आप लिखोगे तो दिस इज 1 प्लस एन एक्स होता है, तो ऐसा आ गया, प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एन माइनस 2, और दिस इज 1 बाई एन क्यूब, है ना, एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और लाइक दिस, है ना। ऐसा हमने छोड़ के इसको रख दिया, और फिर यहाँ पे क्या आया एन एन माइनस 1, देन दिस इज एन माइनस 2, एंड दिस इज एन फैक्टोरियल, और आगे हम ऐसे गए और 1 तक जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो यहाँ 2 फैक्टोरियल है तो -1 तक गया, 3 फैक्टोरियल है तो -2, तो n फैक्टोरियल है तो n माइनस 1 तक जाएगा, तो वो सिंपली 1 बचेगा। ठीक है, और फिर ये बन गया 1 बाय एन की पावर n सिंपली। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा, देखो 1 प्लस 1 बन जाएगा। अगर आप यहाँ से n कॉमन लेते हो तो n स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर के n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 माइनस का 1 बाई एन, क्योंकि हम n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ दोनों टर्म से n माइनस 1 और n माइनस 2 से आप n कॉमन ले लो तो n क्यूब बचेगा,
और वो डिनोमिनेटर के एन क्यूब से कैंसिल होके 1 - 1/n एंड 1 - 2/n बन जाएगा। ठीक, आगे हमने इसी तरह प्रोसीड किया तो देखो यहाँ पे n की पावर n है और यहाँ पे n टर्म्स रहे होंगे। ठीक है, तो वहां से हम लेंगे तो 1/n फैक्टोरियल क्या बनेगा, 1 - 1/n, 1 - 2/n एंड लाइक दिस हमको एंड टर्म जो मिलेगा वो 1 - n - 1/n। अभी मैंने आपको समझाया कि वो n - n - 1/n आएगा टर्म, है ना, अभी समझाया था। तो ये कैंसिल होके बन रहा था तो दैट इज वाई n कॉमन लिया तो n - 1/n आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अब पूरा क्वेश्चन जो है वो इस लाइन पे ही टिका हुआ है। इफ यू अंडरस्टूड दिस लाइन देन एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक, अब अगर आप देखोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सो एवरी टर्म इज लुकिंग लाइक 1 - 1 by something। सी, 1 - 1 by something, 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n, सारे के सारे टर्म्स जो है वो हमारे पास ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और अभी हमने इस इनइक्वालिटी को थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है या नहीं किया है, देखो। just few minutes back we have discovered something about this inequality। और वो क्या है कि जो मेरे पास 1 - 1/n टर्म है वो हमेशा लेस देन 1 आएगी फॉर ऑल n के लिए। देखो 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, 1 - 1/2 करोगे 0.5 लेस देन 1, 1 - 1/3 1 - 0.3 यानी 0.7 लेस देन 1। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1, राइट। सिमिलरली 1/2n करोगे, 1 - 2/n करोगे, वो भी ऐसे ही होगा, हमेशा लेस देन क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप रखोगे n की वैल्यू को 1 तो -1 वो भी लेस देन 1 आया। देन n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 - 1 0 लेस देन 1। 3 रखोगे 1 - 2/3 दैट इज व्हाट 1/3 दैट इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो 1 - k/n होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा फॉर ऑल k विच आर फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, राइट, ऐसा होगा हमारे पास। तो अब देखो वापस जाती हूं मैं इस एक्सप्रेशन पे और मैं यहाँ क्या लिख दूंगी कि जो an है 1+1। ठीक है, और अब हम अपना जो इनइक्वालिटी है वो यूज कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट 1/2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 1 - 1/n तो हमने 1 से छोटा दिखा दिया। फिर 1/3 फैक्टोरियल, 1 - 1/n लेस देन 1, 1 - 2/n इज लेस देन 1। इन अ सिमिलर वे दिस इज 1/n फैक्टोरियल एंड यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे टर्म्स जो है वो 1 से छोटे हमने दिखा दिए, करेक्ट। तो ये सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन बचा कि नहीं बचा, 1+1 देन 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल एंड लाइक दिस इज 1/n फैक्टोरियल। सिंपल सी एक इनइक्वालिटी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करें। ये लाइन हमने अभी देख ली। अब अभी भी हमको नहीं पता हम बाउंडेडनेस कैसे दिखाएं, तो एक काम करते हैं, ये जो फैक्टोरियल वैल्यूज हैं इनको क्या हम ओपन कर सकते हैं, यस वी कैन ओपन देम, है ना। तो ये क्या बनेगा, an जो है वो लेस देन 1+1, 1/2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 2, है ना। 1/3 फैक्टोरियल को 1 × 2 × 3, 1 × 4 फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं एंड देन फाइनली n फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका मैं आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट भी बता दूंगी जिसको आप याद रख सकते हो। ठीक, ऐसा बन गया। नाउ यू सी वन मोर थिंग कि अगर हम ये जो 1 2 3 और 1 2 3 4 सब कुछ लिखा है इसको किसी एक ही टर्म में अगर लिख दें तो सबसे छोटा टर्म फिलहाल हमको 1/2 नजर आ रहा है। तो अब एक बात बताओ कि 1/3 जो है और 1/2 उनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करेगा। आपको पता है कि डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ 1/3 इज लेस देन 1/2 बिकॉज डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ी। 1/4 इज ऑल्सो लेस देन 1/2, है ना। 1/5 इज ऑल्सो लेस देन 1/2। तो in short, can I say like 1/n is less than what? Is less than 1/2 for all n starting from where? For 3, 4, 5, something like this. तो अब मैं यहाँ पे वो यूज कर सकती हूँ।
सो ए एन इज लेस देन 1+1। देखो यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 × 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 बन जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे n टाइम्स हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये क्या बना, 1+1 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सिमिलरली दिस इज 1/2 की पावर n। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। यस, ज्योमेट्रिक सीरीज नजर आ रही है, 1/2 से या 1 से भी कंसीडर करोगे तो नजर आ रही है आपको। और अगर हम इस 1 से कंसीडर करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज को, ओके लेट मी जस्ट यहां से, तो nth मतलब हमने n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, उसका सम पढ़ा था। वो क्या होता है, Sn जो होता है सम हमारे पास, लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर, या सो वो क्या होता है, a इंटू 1 - r की पावर n बाय 1 - r, जहाँ पे r आपका ज्योमेट्रिक डिफरेंस होता है, a फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज होता है ना। और जब भी हमारा r लेस देन 1 होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, an इज ये वाला, अगर मैं सम इवेल्युएट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, आई एम ओनली ट्राइंग टू इवेल्युएट दिस सम, तो ये क्या बन जाएगा, 1+1 इंटू 1 - 1/2 की पावर n एंड देन दिस इज 1 - 1/2। तो वो की क्या बनेगा जाके, 1+2 एंड दिस इज 1 - 1/2 की पावर n। करेक्ट, इतना बन गया हमारे पास। अब ये वाले टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनली ये क्या बनेगा, 3 - 1/2 की पावर n-1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो अब जो इनइक्वालिटी हमारे पास आई है वो क्या आई है, जरा देखो, जो an है हमारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज लेस देन 3 - 1/2 की पावर n-1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी के लिए हम ऐसा लिख लें, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो ये वैल्यू जो है वो आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। सी, इट्स गोना हैपन और नॉट, कि जो आपका an है, क्योंकि 3 से आप वैल्यू सब, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और ऑलवेज लेस देन 3 होगी, तो ये वैल्यू हमेशा 3 से छोटी होगी कि नहीं होगी, 3 से आप कुछ कम कर रहे हो तो 3 से कम ही होगा। और इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव। ठीक है, अब अगर हम बात करें बाउंडेड किसकी, बाउंडेड बिलो की, तो देखो ये एक इक्वेशन में मार्क कर रही हूं आपके पास, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, तो 1+1 और प्लस पॉजिटिव वैल्यूज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1+1 यानी 2 हो गया और उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक सो 2 से तो हमेशा ही बड़ा सम होगा, द सम ऑफ द nth टर्म, यानी ये जो वैल्यू है उसका सम हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि फ्रॉम 1 जो हमारे पास an है ना, वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो 2 लेस देन an फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बाउंडेड बिलो को। So what we understood from here is that the sequence an is bounded above as well as bounded below, hence it is bounded. And the approach was, this was our approach, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, कि अप्रोच ये है कि जो हमारे पास एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो कभी कभी काम आ सकता है। ठीक है, so this was our next question or the last question that we discussed, where we understood about how do we use expansion to prove whether the sequence is bounded or unbounded. ठीक है, so I hope it is clear to all of you till this point and there is no problem. और हमने ये भी देखा कि हम कैसे जो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका सम हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो अपना देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन इधर आस्क मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज
टू मी ऑन लाइक इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका मैं आपको सीधे nth टर्म दे रही हूँ, ठीक है। और nth टर्म हमारे पास सीक्वेंस का क्या दिया है, 1/n² प्लस 1/n प्लस 1² प्लस 1/n+2², है ना। अभी देखो जो हम इनइक्वालिटी ऑलरेडी यूज करके आए हैं, हम वही इनइक्वालिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ऑल ऑफ यू नो दैट, क्या, देखो जरा यहाँ पे कि जो हमारे पास n+1 होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, n+1 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन n होगा। तो इन शॉर्ट क्या मैं कह सकती हूँ कि n+1 का जो होल स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन n² होगा। तो 1/n+1 का होल स्क्वायर जो है वो लेस देन 1/n² होगा। एंड सेम चीज होल्ड करेगी n+2 के लिए, है ना। सेम चीज होल्ड करेगी कि n+2 का फिर होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन n² होगा। तो 1/n+2 का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन 1/n² होगा। तो इन चीजों से मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ कि भाई 1/n+k का जो होल स्क्वायर है दैट इज लेस देन 1/n² फॉर ऑल k 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने वही यूज किया। और एक चीज और नजर आ रही है, क्या, कि सीक्वेंस जो है उसका हर एक टर्म, ठीक है, जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका जो हर एक टर्म है वो कैसा है, 0 से बड़ा है, राइट। so we can say that an is greater than 0 for all n belonging to natural number। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, ऑब्वियसली बाउंडेड बिलो हो गया बाय 0। और अब हमने जो इनइक्वालिटी सीखी 1/n², ठीक है, उसको यूज करो अपनी इनइक्वालिटी को, तो वो क्या बन जाएगा, लेस देन 1/n² प्लस 1/n² प्लस 1/n² एंड सो ऑन टिल 1/n+n, क्योंकि हमने k की वैल्यू को n तक ले गए, n²। ये क्या बना देखो, सम है n टाइम्स, क्योंकि 1 से, सॉरी, अब यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है, देखो ये n+0 लिखा हुआ है। इन शॉर्ट अगर आप देखो दिस इज n+0 का होल स्क्वायर, देन दिस इज n/1/n+1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे तो n+1 है, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 1/n² कितनी बार लिखा हुआ है, n+1 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n प्लस 1/n²। और आपको अभी तो पता है कि 1/n जो है वो भी लेस देन 1 है एंड 1/n² जो है वो भी लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर। तो an इज लेस देन व्हाट, 1+1 विच इज 2, यानी कि जो an है वो लेस देन 2 आएगा फॉर ऑल n, करेक्ट। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ से कि जो मेरे पास सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव भी हो गई। और अगर हो गई तो फिर क्या पता लगा हमको कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो गई, ठीक। तो जो नेक्स्ट अप्रोच है हमारे पास विच इज आर अप्रोच नंबर 6, जिसको हमने एक्चुअली अप्रोच नंबर 5 मतलब जब लगाई थी तो यूज किया था कि हम इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। यूज सम बेसिक इनइक्वालिटीज जो कि हमें जैसा nth टर्म दिया होगा उस अकॉर्डिंग करनी होगी। Okay, so I hope it is clear to everyone and it is more than sufficient for today's class। अब जो कुछ और एग्जाम्पल्स मुझे कराने वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। आज के लिए बहुत हो गया, तो एक हम रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्लास में क्या क्या किया। सो वी स्टार्टेड विद द समरी ऑफ लेक्चर 2 एंड देन हमने कांस्टेंट सीक्वेंस को देखा, कैसे हम मतलब बेसिकली हमने अप्रोच 1 देखा, रेंज और सीक्वेंशियल एलिमेंट की हेल्प से हम कैसे सीक्वेंस को देखते हैं कि वो बाउंडेड है या नहीं। देन हमने अप्रोच नंबर यूज करी अपनी 2, जहाँ पे न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट किया और देखा कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। तो यहाँ पे जैसे हमने न्यूमरेटर में अप्रोच लगाया, है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था n/n+1, वहाँ हमने न्यूमरेटर में अप्रोच लगाया और क्वेश्चन सॉल्व किया। देन वी वेंट थ्रू अप्रोच नंबर 3, जहाँ पे हमने देखा कि an में +1 -1 करके अगर कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो ये हमने यहाँ किया, देन उस वाले पुराने क्वेश्चन में भी किया। देन वी वेंट थ्रू आर अप्रोच नंबर 4, जहाँ पे हमने जो nth टर्म है सीक्वेंस का उसमें बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करी।
एंड दैट वाज दिस, जिसको हमने n/n+1 में भी इम्प्लीमेंट किया था पुराने क्वेश्चन में। और फिर फाइनली अप्रोच नंबर 5, जहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया, तो कभी कभी कुछ और एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस बेसिक इनइक्वालिटीज का यूज करके हम कैसे एक सीक्वेंस को बाउंडेड अनबाउंडेड दिखाते हैं, ठीक है। So that's it for today's class. I hope you people are enjoying these sessions and these are quite important, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है कैसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड प्रूफ करेंगे, अनबाउंडेड प्रूफ करेंगे, बाउंडेड अबव देखेंगे, बाउंडेड बिलो, एंड इफ यू हैव, if like you don't have the, like we say, the packet of approaches, collection of approaches, then you won't be able to solve the question of sequence and series। क्योंकि आप देखोगे 1-2 साल को छोड़ के हर साल सीक्वेंस सीरीज का कुछ नया क्वेश्चन आता है, तो आपके पास बहुत सारी अप्रोच होनी चाहिए। यू नेवर नो कौन से क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच काम आ जाए, एक अप्रोच हर क्वेश्चन में काम नहीं कर सकती है। सो यू हैव टू सी ऑल वे अराउंड कि कौन सी अप्रोच काम आएगी किस क्वेश्चन में, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर वुड हैव बीन हेल्पफुल टू यू। Please write your feedback in the comment section. Surely please write your feedback, okay, that gives us an energy, and also like if there is something wrong we can improve on it, okay. So that's it. Thank you so much. Keep watching the videos, and if you have questions, please keep asking them on Telegram or in comment section. We would be like glad to answer all your questions and queries, okay. Thank you so much. See you all in the next session and in the next week. Bye bye.